Outset, I want to make it clear that our allegation, not only our allegation, the criminal case has been registered against one individual belonging to the bank. We have no allegation against the bank. HDFC Bank, as I said, is one of the pillars of our banking system. So we have no allegation against the bank, against the institution. Our allegation is against the misdeeds, misconduct, illegal acts, criminal misconduct of Shri Jagdishan in connivance with the former trustees of the Leelavati Trust. I would like to highlight some of the facts which were part of this FIR, which was registered by the Bandra Police Station on the direction of the Honorable Court. One allegation is that 2.05 crores was given in cash to Mr. Jagdishan. It was found in one of the diaries, handwritten diaries, where the so-called hisab or the cash transactions was being maintained in office of the trustees, the former trustees. So total misappropriated amount of which we got the entries in the diary were in the excess of 14 crores, out of which 2.05 crores was paid to Mr. Jagdishan. Mr. Jagdishan and his family members were virtually given free medical treatment by the former trustees for the favors from the bank and for hounding the actual heirs of this hospital, Mrs. Charu Mehta and her family members, who were hounded by the bank at the instance of the former illegal trustees who are no longer in control of the hospital. The favors granted in form of waiver of the medical bills, more than 95% of the medical bill was waived, and it runs into lakhs. We are still accounting for it. Still more and more records are coming out. Each day new stories coming out, but it is running into lakhs. The medical favors were granted to this specific individual. At the instance of former trustees, our permanent trustee, founder trustee, late Shri Kishore Mehta, who is no longer with us unfortunately, he was hounded by the bank day and night. He was summoned while he was admitted in the hospital undergoing treatment for serious ailment. He was hounded. He was summoned over 100 times. And hounded in various other means, and one of the allegations is it ultimately led to his sad demise. His health deteriorated because of the mental harassment, and it led to his sad demise in May last year. Shri Jagdishan also tried to bribe our doctors by offering money under CSR. For the first time, certainly, Mr. Jagdishan, 1.5 crores was offered as CSR money to our doctors. And the purpose of this so-called CSR, bribe in form of CSR, was to find out information about the running of the affairs of the hospital, what the present trustees are up to, how other things are being run, or if the doctors can help in any manner in hounding our present trustees who are lawfully appointed trustees by the order of the Honorable Court. Also, an illegal deposit of 25 crore was given to the bank without taking due approvals, as later the trust is required to be taken for any such deposit to any bank. No such approval was taken. It was just a quid pro quo. So these are some of the serious allegations which have been levied in the FIR which has been lodged at Bandra Police Station. On basis of this FIR, we have already written to the Ministry of Finance, to SEBI, to RBI, to CVC, to Ombudsman for taking immediate cognizance of these serious misdeeds and illegal acts and criminal misconduct of Shri Jagdishan in connivance with the previous trustees. As I told you, there are total 8 trustees named, 7 trustees, ex-trustees named in the FIR, in addition to accused number 1, which is Mr. Jagdishan. I again reiterate
we have no allegation against the bank. Our allegation, which we satisfy the Honorable Court on the basis of the evidence which is produced before the court, that we have sound evidence, and we will be, I'm sure we will be, the agencies and the regulators, that they look into these allegations with evidence, proper action we will request, and we will expect a proper action to be initiated against Jagdishan. MD and CEO of a bank of this size, which requires approval of the various regulatory authorities, the person has to be fit and proper. And once a serious allegations or serious material against a person is there, he is no longer fit to continue. So as a first step to ensure that a proper investigation can happen, there is no tampering of evidence, nobody interferes with the witnesses. As a first step, we are requesting the regulatory authorities, including the Board of Directors of HDFC, the SEBI, the Ministry of Finance and RBI, to ensure that there is immediate suspension of Mr. Jagdishan from the post. He is asked to step down to ensure a proper, impartial and fair investigation of the case. So these are the allegations which are there in the FIR, which is being investigated by Banda Police Station. Our allegation is directly against Mr. Jagdishan, against his misdeeds. And I would also like to reiterate here that we have seen a press note which has been issued by the HDFC Bank, which they say that we are trying to get back at the bank for pursuing the in retaliation of the proceeding which they have launched against the family. Now, firstly, let me clarify that no proceeding is against the family. They went against specific family members with a vendetta, with vengeance, in connivance with the previous trustees. And the so-called press note also says that Prashant Mehta, claiming to be a trustee, he is a legally appointed permanent trustee of this bank, a position which has been upheld right up to the Honorable Supreme Court. And this press note issued at the instance of Mr. Jagdishan says that he is claiming to be a trustee. And this the so-called hounding of our trustees started only after Mr. Jagdishan came into a position of power in the bank. For 16 years, there was no action initiated. In fact, this amount which they are claiming is still being disputed. It is going on in various forums and various courts of law. And I am sure justice will prevail, but our claim is that all the amount which was due to the company has already been reclaimed. It has already reached to the lenders, and no amount is outstanding against any of our trustees. But calling entire family defaulter, that they have a defaulter status, is completely defamatory, and we are going to take suitable legal action for not only civil damages but including criminal defamation. We are going to be filing against the individual who has issued this press conference and this press note. I am sure it is not by the bank, it is at the instance of a specific individual against whom I have just highlighted the serious allegations which are being investigated. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा श्री प्रशांत मेहता, जो कि हमारे परमानेंट ट्रस्टी हैं। श्री मोनीश भाटी हमारे एडवोकेट हैं। उन्होंने हमारा जिस केस के बारे में हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उस केस में उन्होंने हमको रिप्रेजेंट किया, फाइट किया। श्री मोहित माथुर हमारे ट्रस्टी हैं। मैं परमजीत सिंह के हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे कंट्री के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक, विच इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड बैंक, सबसे ट्रस्टेड बैंक है। मैं खुद भी उसी बैंक के साथ इनफेक्ट आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, जब बॉम्बे पुलिस कमिश्नर था, कि थाने पुलिस कमिश्नर, पुलिस के सारे अकाउंट भी HDFC बैंक ही हैंडल कर रहा है उसके बाद से। तो हमारा कोई भी एलिगेशन बैंक के विरुद्ध नहीं है। बैंक के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शशिधर जगदीशन, उनके खिलाफ हमने रिसेंटली
जब हमारे ट्रस्टीज वापस कंट्रोल में आए, हमने रिकॉर्ड लिखने शुरू किए, तो बहुत से चौंका देने वाले डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, हैंड रिटन नोट्स, ईमेल हमारे नोटिस में आई। और उन रिकॉर्ड्स के आधार पर जो कि हमारे नोटिस में आए, हमें एक पिक्चर सामने आई कि हमारे फॉर्मर जो इलीगल ट्रस्टी थे, पहले कंट्रोल में थे लगभग 20 वर्ष, उन्होंने श्री जगदीशन को 2.05 करोड़, 2 करोड़ 5 लाख कैश में दिया। इस प्रकार की एंट्री हमको डायरी में मिली है। उनको और उनके परिवार के सदस्यों को लगभग लाखों रुपए का लगभग फ्री ट्रीटमेंट, 90% से अधिक, 95% से अधिक डिस्काउंट देकर उनका ट्रीटमेंट किया गया। ये फ्री ट्रीटमेंट अब आपको मालूम है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करता है, लेकिन गरीबों के लिए करता है। लेकिन श्री जगदीशन को ऊपर यह विशेष फेवर किया गया। श्री जगदीशन के साथ एज ए क्विड प्रो को कि आप मेरे मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। HDFC बैंक में उनकी वॉच के अंडर 25 करोड़ का एक फिक्स डिपॉजिट लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा दिया गया, हमारे फॉर्मर ट्रस्टीज के द्वारा, बिना अप्रूवल लिए हुए। इस प्रकार का कोई भी डिपॉजिट करते समय अप्रूवल लिया जाता है, प्रोसीजर ले डाउन है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और इसके अलावा 1.5 करोड़ CSR के फॉर्म में श्री जगदीशन के आदेश पर हमारे डॉक्टर्स को एक ब्राइब के रूप में, CSR के फॉर्म में एक ब्राइब के रूप में देने की कोशिश की गई, ताकि हॉस्पिटल से रिलेटेड जानकारी वो HDFC बैंक के जो MD CEO है श्री जगदीशन उन तक पहुंचा सके। और हमारा मेन एलिगेशन ये है कि बैंक लीलावती हॉस्पिटल के फॉर्मर ट्रस्टीज ने ये जो काइंड में दी, कैश में दी, उसके बदले में उन्होंने हमारे जो परमानेंट फाउंडर ट्रस्टीज थे उनको हाउंड करा, उनके पीछे लगे, उनके विरुद्ध केसेस फाइल करे, जबकि जो भी अमाउंट क्लेम किया जा रहा है पूरा अमाउंट ऑलरेडी रिक्लेम हो चुका है, बैंकों तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद जब श्री किशोर मेहता, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे ट्रस्टी थे, उनको 100 बार से अधिक समन किया गया। जब वो बीमारी से जूझ रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेडिकल सर्टिफिकेट दिए गए डॉक्टर्स के कि वो सीरियस उनको एलिमेंट है, नहीं हॉस्पिटल से जाना के अलाउड नहीं है, लेकिन उनको बार बार 100 बार से अधिक समन किया गया। और फैमिली का एलिगेशन तो यही है कि इस जो हेरेसमेंट की वजह से श्री किशोर मेहता लास्ट ईयर मई के महीने में चल बसे, हमारे बीच नहीं रहे सैडली। अब श्रीमती चारू मेहता और उनके परिवार के सदस्य और बाकी जो लीगली अपॉइंटेड ट्रस्टीज हैं वो हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उसी उद्देश्य के लिए चला रहे हैं जिसके लिए चैरिटेबल पर्पस के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था। और हम चैरिटी कर रहे हैं, हम श्री जगदीशन का फ्री ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल चैरिटी कर रहे हैं। टोटल जो डायरी हमको, जिसमें श्री जगदीशन को 2.05 करोड़, 2 करोड़ 5 लाख अमाउंट देने का हमको नोटिंग मिला, टोटल उसमें हिसाब किताब डायरी में 14 करोड़ से अधिक का है। उसमें से 2 करोड़ 5 लाख की जगदीशन को भी गया, और भी अलग अलग एंटिटीज को, इंडिविजुअल्स को गया है, वो सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। रोज नए नए स्केलेटन्स निकल के सामने आ रहे हैं। स्केलेटन्स ब्लैक मैजिक की याद भी दिलाया जाता है, जो कुछ समय पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके नोटिस में लाया था कि इस प्रकार के भी यहाँ पे कांड यहाँ पे किए गए थे पिछले ट्रस्टीज के द्वारा। तो रोजाना नए फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, मिसलीड सामने आ रहे हैं। टोटल साइफनिंग ऑफ कितने हजार करोड़ का हुआ है वो पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आपको बताया था हमने कि 1250 करोड़ का एक केस, 45 करोड़ का एक केस, कुछ 20 करोड़ का एक केस, और अभी नया केस, नए 2 केसेस हमने जो फाइल किए हैं। और ये केसेस हमने डायरेक्टली फाइल नहीं किए हैं, ये ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के आदेश के ऊपर ये केस फाइल किए गए हैं। पहले हमने अलग अलग रेगुलेटर्स को लिखा था कि ये फैक्ट्स हैं, इनके आधार पे कार्रवाई की जाए, लेकिन जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई, डिले हुआ, तो हम डायरेक्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए। श्री भाटिया, एडवोकेट भाटिया ने वहां पे आर्ग्यू किया, मजिस्ट्रेट साहब को एविडेंस दिखाई गई। जब वो सेटिस्फाई हो गए एविडेंस से,
उसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को आदेश दिया और 30 मई को एक FIR दाखिल हुआ है, जिसके बारे में अब हम आपके साथ मैंने फैक्ट्स शेयर किए हैं। तो लगभग मैंने सभी पिक्चर आपको क्लियर कर दी है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा समय पहले ही एक प्रेस नोट सामने आया, जो कि या तो बैंक की तरफ से इशू गया है, लेकिन स्पष्ट है कि श्री जगदीशन की इसके जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया है वो श्री जगदीशन ही होंगे, बिकॉज इसमें लिखते हैं कि श्री प्रशांत नायर क्लेमिंग टू बी ट्रस्टी ऑफ लीलावती, ये परमानेंट ट्रस्टी हैं। इनकी जो पोजीशन है परमानेंट ट्रस्टी चैरिटी कमिश्नर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपहेड हो चुकी है, और श्री जगदीशन इनको एक क्लेमिंग टू बी परमानेंट ट्रस्टी बोलते हैं, क्लेमिंग टू बी ट्रस्टी ऑफ लीलावती ट्रस्ट। इसका मतलब आज भी वो पिछले ट्रस्ट जो इलीगली अपॉइंटेड ट्रस्टी थे, जिसमें खास तौर से मैं नाम लूंगा श्री चेतन मेहता का, मेन सूत्रधार ये जो पूरे कांड हुए, जो पूरे साइफनिंग ऑफ हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, इसके मेन सूत्रधार श्री चेतन मेहता थे। उसके अलावा श्री निकेत मेहता और श्री रश्मि मेहता इसके मेन सूत्रधार थे। उनके साथ 4 बाकी और भी जो फॉर्मर ट्रस्टीज हैं उनके नाम FIR में हैं। हमने ऑलरेडी इस FIR के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, RBI को, सेबी को, HDFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लिखा है कि श्री जगदीशन के खिलाफ तुरंत डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। वो एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है पोस्ट को होल्ड करने के लिए, एंड कोई भी उनके खिलाफ इंक्वायरी होने से पहले पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उनको अपने पद से हटाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए या स्टेप डाउन करना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे घोटाले पे हो सके। बड़ा घोटाला है, और इतने एक रिस्पेक्टेड बैंक के MD के विरुद्ध इतने गंभीर एलिगेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो इस बैंक के हेल्प पे इस बैंक को हेड करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ये हमने रिक्वेस्ट सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी से किया है। हम क्वेश्चन लेने के लिए कोई भी तैयार है, आप सवाल कोई पूछना चाहे आप कुछ। एक कंपनी की इस फैमिली की जिन्होंने बहुत समय पहले एक छोटा सा लोन लिया था 5 करोड़ का बैंक से, वो पूरा बैंक रिक्लेम कर चुका है, पूरा वेरियस मीन्स के द्वारा जितने बैंक्स को लोन थे सब रिकवर हो चुके हैं, वापस जा चुके हैं, उससे काफी अधिक अमाउंट जा चुका है। टोटल अमाउंट लोन का था 5 करोड़। आपको बता देता हूँ, ये जो प्रेस नोट में 65 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि कोई फाइनल अमाउंट किसी ने सेटल नहीं किया है। ये अभी भी वेरियस फोरम में हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस पे हमारी लड़ाई जारी है, और ये पूरा अमाउंट जितना बैंक को ओड था पूरा रिकवर कर चुका है। बैंक मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने उसके पीछे मिसरिप्रेजेंटेशन का कारण भी बताया कि वो कनाइमेंस में थे श्री चेतन मेहता के साथ, श्री रश्मि मेहता, निकेत मेहता के साथ, उनसे फेवर्स ले रहे थे और उसके बदले पूरे परिवार को हाउंड कर रहे थे। हमारे जो परमानेंट ट्रस्टीज थे, जेन्युइन ट्रस्टीज थे, उनके परिवार को हाउंड कर रहे थे, और उसी हाउंडिंग की वजह से, मेंटल हैरेसमेंट की वजह से हमारे जो रिस्पेक्टेड लेट श्री किशोर मेहता परमानेंट फाउंडर ट्रस्टी थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। लास्ट ईयर उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो चल बसे, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इसके लिए भी हम बैंक को जिम्मेदार ठहराते हैं, बैंक को नहीं, हम श्री जगदीशन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सर, आप लोगों ने इतने दिनों से मैटर उठाया है, तो क्या रीजन है अभी तक जगदीशन जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एंड मुंबई पुलिस के पास ऑलरेडी 5 FIR दाखिल है, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये जो अभी हमने जो मामला आपके सामने लाया है, इसमें मेन आरोपी, नंबर 1 आरोपी श्री जगदीशन है। उसके अलावा मैंने बताया 7 फॉर्मर ट्रस्टी इसमें भागीदार हैं। तो हमने इसमें ऑलरेडी रेगुलेटरी पुलिस के अलावा RBI, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी लिखा है कि उनसे सिर्फ क्रिमिनल एक्शन ही नहीं, तो बाकी रेगुलेटरी जो एक्शन होता है वो एक्शन भी बैंकिंग कानून के आधार पर, अनफिट एंड प्रॉपर पर्सन ना होने का जो उनके विरुद्ध हमारा चार्ज है, उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, ऐसी क्या वजह सर? Not only आदमी not only is guilty of basically not only this, he has also committed fraud. He has made documents of the trust. He has defrauded, corruption, bribery, सब कुछ है इसमें.
So it is a very serious thing. He has misused his position as a public servant and he has taken all this money and जो उसने 2 करोड़ कैश निकाला है and he's nothing but short of a murderer because he is also involved in the the killing of my father. And this is also going on in the Sessions Court right now, a case against him and others for culpable homicide जहाँ notice भी issue हुआ है by the Sessions Court. पर सर ऐसे क्या जब बोल रहा है 65 करोड़ एंड डिफॉल्टर एंड एवरीथिंग, फर्स्ट उसको झांक के देखना चाहिए कि वो साला एक मर्डरर है और उसने बहुत कुछ यहाँ पे इलीगल किया है। पर सर ऐसी क्या वजह है कि एक वकील को आर्ग्यू करना पड़ता है तब जाके केस बनता है? एक वकील को आर्ग्यू करना पड़ता है तब जाके केस बनता है, क्या वजह थी? नहीं, कोर्ट में तो आर्ग्यू करने के लिए वकील ही है, सामने पूरे फैक्ट्स लाए क्योंकि डिले हुआ वेरियस एजेंसी से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनके डिले हो रहा था, इसी कारण से हमने कोर्ट में केस फाइल करा एंड कोर्ट में तो जाके एडवोकेट को ही हमारे पैनल के रिस्पेक्टेड एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट ने श्री मुनीश पाटिया, इन्होंने आर्ग्यू करा, मैजिस्ट्रेट को पूरा प्रूफ दिखाया और जब मैजिस्ट्रेट पूरे सेटिस्फाई हुए उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि इसमें बांद्रा पुलिस स्टेशन एफआईआर दाखिल करे। एफआईआर दाखिल हो चुका है और उस एफआईआर के आधार पर हमने वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है, रिक्वेस्ट किया है कि तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए। सर, ऑर्डर FIR 972 of 11.5 crore, 52 crore, that case has been taken over by the economic office wing. हमारे 2 केसेस 1250 करोड़ वाला केस और एक दूसरा केस EOW में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और 3 केसेस का इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है। जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन होता है, बड़े अमाउंट्स होते हैं, आपको मालूम है, ऐसे में EOW इन्वेस्टिगेशन टेक होल्ड कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूरा हम कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, लेकिन जो ये प्रेजेंट केस है ये सिर्फ EOW या मुंबई पुलिस से संबंधित केस नहीं, ये कहीं ज्यादा गंभीर केस है बिकॉज जो कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है उसको जो उसके नंबर 1 पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा है, रोज डे टू डे उसकी रनिंग करता है, हमारा सीरियस एलिगेशन उसके मिसयूज ऑफ ऑफिस के बारे में है। बैंक के विरुद्ध नहीं, हम बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो अपील की है, रिक्वेस्ट किया है कि कार्रवाई CEO MD श्री जगदीशन के विरुद्ध की जाए। बैंक को रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, पिलर है इस कंट्री के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। सर, आई विल क्लैरिफाई ऑन दिस पॉइंट आल्सो। सिर्फ EOW नहीं, ED ने भी हमारे इस केस के ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिया है। ED इज आल्सो टेकिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेजेंट मैटर। जो 1200 करोड़ की जो बात की थी, ECIR भी दाखिल कर दिया है ED ने और मुझे विश्वास है ये केस भी जो ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ECIR का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है, तो वो इस केस में भी थोड़ा सा सिंस कनेक्टेड है ये सारे मिस ऑफ प्रिपरेशन हुआ करीब हजारों करोड़ का, वो पूरा ही शायद ED के दायरे में भी ये पूरा केस लगता है हमें आना चाहिए, आएगा और हम अपील भी करते हैं ED से कि वो भी इस केस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। बेल के टर्म्स पे छोड़ा हुआ है एंड द हियरिंग इज नाउ गोइंग टू बी नेक्स्ट वीक दुबई कोर्ट में, जहाँ पे उसको कन्विक्शन होने की शक्यता है और अगर कन्विक्शन हुआ तो कुछ भी हो सकता है, फाइन, जेल, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको ये हमारे जो लॉयर्स के लेटर्स हैं जो दुबई से, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि these इंटरनेशनल कॉनमैन और चेतन लगा की कौन से कितने नोटोरियस एक्टिविटीज हैं। तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी उनके क्रिमिनल एक्शन लॉन्च किया गया है। आप सभी को डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि जो मेन मास्टरमाइंड थे पूरे स्कैम के लीलावती हॉस्पिटल का हुआ, जो उसके मेन मास्टरमाइंड श्री चेतन मेहता थे, जो कि इस प्रेजेंट केस में भी मास्टरमाइंड है श्री जगदीशन के साथ कनाइनेंस में, उनके खिलाफ रिसेंटली श्री प्रशांत मेहता की कंप्लेंट पर दुबई में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है एंड फिलहाल अरेस्ट होकर उनको बेल पे छोड़ा गया है।